Hello everyone, myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 9, Introduction to Database Management System, part 3. Student, in last session we learned the field of database that are forms, report, query and table, as well as now in this session we are going to learn to how to create base as well as how to create table in the database. So let us start it. So student, first of all, how to open base. So let us first start base, select application office, open office. When you start the base software, you will see some option available on the base opening screen as shown in figure. So same way student, we will open it. First of all, we will open the office. It will take some time, first time. Okay student, we are using the version 4, but there they open the at that time the version they was used 3.2. right now we are using student 4th number version. Now from here we have to open the database. It's called base software. So same screen you can see over here. Right now in this you have to choose the option create new database, that is already selected. After that, if you want to work with any of the database created earlier, then we can open such a database by choosing an option open an existing database file. यानी स्टूडेंट अगर हम लोग ने इसके पहले कोई डेटाबेस बनाया है तो उसके लिए हम लोग ये रेडियो बटन चूज़ करेंगे और वहाँ से जो प्रीवियस हम लोग का जो अर्लियर डेटाबेस है उसको चूज़ करेंगे. अगर वैसा नहीं है तो क्रिएट ए न्यू डेटाबेस हम लोग ये करेंगे. ठीक है. ओके. आफ्टर दैट here in our case we have not created any database so far, hence we will choose the option create a new database. By doing so, base will display a screen as shown in figure. Right. So student यहाँ पे देख लेना, जो दिस सिलेक्ट डेटाबेस को आप नेक्स्ट करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा. चलो देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं. राइट, सेम ऑप्शन आया स्टूडेंट, एक सिलेक्ट डेटाबेस और सेव अ पासवर्ड. सेव अ पासवर्ड के अंदर एक ऑप्शन रखना है यस रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी और ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग. तो यस रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी, ओपन द डेटा फॉर एडिटिंग. आफ्टर दैट स्टूडेंट you will get in figure 9.9 you may observe that we get an option to register our database in openoffice.org website. We may select this option in case we want to make the database public. Normally we would not make the database public, hence select the second option, no, do not register the database. So for the base gives us two options to start working with database. So we can either create table using design view or can use wizard. So by default open the database for editing option would be checked. If we want to use wizard, select the checkbox with option create table using the table wizard. So let us create the table using wizard. Select the option create table using the table wizard and click on finish button. तो स्टूडेंट ये सारे स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं. मैं आपको सिंपली यहाँ से समझाता हूँ. ओके, यहाँ तक देखो, यहाँ से आपको फिनिश करना है. जैसे आप फिनिश पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आपके डेटाबेस का नाम आपको क्या रखना है. तो मैं यहाँ पे रखता हूँ सपोज हमारा ये स्टोर का डेटाबेस है. राइट, एक शॉपिंग स्टोर है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शॉपिंग या मोबाइल स्टोर लिखते हैं बिकॉज मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर हो रही है. तो मोबाइल स्टोर सेव, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं. ओके, नाउ here you can see the database which you created. It will take some time. राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखना ये चारों ऑप्शन आपको दिखेंगे डेटाबेस के अंदर, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट. अभी फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा टेबल. अब हमें आगे क्या करना है, डेटाबेस कंप्लीट होने के बाद इन टेक्स्ट बॉक्स विद द लेबल फाइल नेम वेयर द टेक्स्ट न्यू डेटाबेस इज विजिबल टाइप मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टोर. ओके, एंड क्लिक सेव बटन.
आफ्टर दैट चूज अप्रोप्रिएट लोकेशन टू सेव द फाइल, हम लोग ने डेस्कटॉप पे सेव किया बाय क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन एरो, बेस विल accumulate design.odb extension to the database file, click save button, table wizard as shown in figure 9.11 will be displayed। राइट स्टूडेंट, हम लोग ने ये ऑलरेडी सिलेक्ट किया था इसलिए ये अभी फिर से, अच्छा यहाँ से ये टेबल विजार्ड हमें देखना है, तो टेबल विजार्ड के लिए क्रिएट यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल, तभी जाके ये ऑप्शन दिखेगा हमें। राइट, अब यहाँ पे स्टूडेंट सैम्पल टेबल में टास्क ऑप्शन सिलेक्ट है, हमारे यहाँ पे भी हम टास्क ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और कैटेगरी में बिजनेस, करेक्ट। आफ्टर दैट यहाँ से ये सारे फील्ड ये वैल्यू शिफ्ट करने हैं, देखना यानी ये पढ़ लेते तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि we will first use table wizard based software which consists of ready-made tables divided into two categories, business and personal। तो हमें वहाँ पे रेडीमेड टेबल मिलेगा जिसमें दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक है बिजनेस और दूसरा है पर्सनल। बिजनेस कैसे, बिजनेस कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ सैम्पल टेबल लाइक टेबल, एसेट, कॉन्टैक्ट, एक्सपेंस, इनवॉइस एक्सेट्रा, बट पर्सनल कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ टेबल लाइक फोटोग्राफ, डीवीडी कलेक्शन, receipt, plants एक्सेट्रा। तो select business category and click on drop down list available under sample table list, observe the list and you will find that all the 4 table will intend to create are available in the list, select supplier list from the table will be populated। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें ये सारे टेबल ऑलरेडी रहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ से मैं सप्लायर को सिलेक्ट करता हूँ, तो जो हम लोग ने डिसीजन मतलब जो भी डिसाइड किया था टेबल, तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द डबल एरो बटन टू द सिलेक्ट ऑल द फील्ड दैट आर विजिबल अंडर अवेलेबल फील्ड लिस्ट, अल्टरनेटिवली यू कैन होल्ड कंट्रोल की एंड सिलेक्ट ओनली वन डिजायर फील्ड वन बाय वन। सो वंस यू आर डन क्लिक ऑन सिंगल एरो बटन, time being we will click on double arrow button so that all the field are part of our table। स्टूडेंट जैसे आप इसको ऑल शिफ्ट कर दोगे, फिनिश कर दोगे, तो ये सारे के सारे फील्ड आपके टेबल का एक पार्ट बनेंगे जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगे टेबल के साथ। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट बेस ओपन ईच टेबल इन अ सेपरेट विंडो, क्लोज द सप्लायर डेटा व्यू विंडो, open modern electronic store.odb window and you will find main database window as shown in figure। राइट स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे आपने इसको बंद किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सप्लायर नाम का विंडो आपको दिखाई दे रहा है सेम एज इट इज। आफ्टर दैट अगर वहाँ पे जाके आप एडिट करोगे, यानी इफ द लेफ्ट पैन यू कैन सी डेटाबेस ऑब्जेक्ट, table queries, forms and report, the table object icon would be default selection and you can see that supplier table is visible under the label table। So let us view table of the fields of supplier table, right click on the supplier table icon, choose edit option from the available option। तो जैसे आप edit करोगे स्टूडेंट तो ये इस तरीके से दिखाई देगा आपको, जहाँ पे आपको इसके फील्ड टाइप और फील्ड नेम दोनों दिखाई देगा। अगर मान लो कि आपको फ़ोन नंबर पे यहाँ पे चेंज करना है डेटा टाइप, यहाँ पे आपको लेना है सपोज इंटीजर या नंबर, तो आप नंबर ले सकते हो। वेरकर लिखा तो वहाँ पे दोनों एक्सेप्ट होंगे, बट हमें सिर्फ नंबर चाहिए था, यहाँ पे नंबर भी सिलेक्ट करेंगे। ओके, फैक्स नंबर है यहाँ पे भी, अगर हमें नंबर लगा तो यहाँ पे नंबर सेव करना है, हमें सिलेक्ट करना है इस तरीके से। राइट स्टूडेंट, एड्रेस उन्होंने टेक्स्ट वेरकर है। उसके बाद अब ये टेबल के व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस व्यू, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें टोटल फील्ड है 3, फील्ड टाइप, डिस्क्रिप्शन और फील्ड प्रॉपर्टीज। तो ये तीनों टाइप का क्या वैल्यू है वो क्या समझाते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो फील्ड टाइप बता रहा है इट अलाउस टू असाइन अ डेटा टाइप टू ईच फील्ड। फील्ड टाइप क्या बताता है, इट अलाउज अस टू सिलेक्ट एनी ऑफ द टाइप फ्रॉम ऑफ और ईच फील्ड। आफ्टर द डिस्क्रिप्शन ये बताता है इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू एंटर डिस्क्रिप्शन फॉर ईच ऑफ द फील्ड, though it is not compulsory to write description for each field of the table। The description helps the user to understand what the purpose of each field is। स्टूडेंट जब भी आप कोई टेबल को एडिट करोगे तो वहाँ पे आपको फील्ड नेम,
फील्ड टाइप, डिस्क्रिप्शन और फील्ड प्रॉपर्टी लिखनी है। जबकि फील्ड प्रॉपर्टीज आपका सेम है, सपोज इसमें कोई चेंजेस नहीं करें, बट जो फील्ड टाइप है इसको आप जो चाहिए वो फील्ड टाइप सेट करो। उसके बाद अगर ये मान लो कि एड्रेस के बारे में आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है या सिटी के बारे में लिखना है कि आपको गुजरात स्टेट की सिटी सिलेक्ट करना है, ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखना है, या मान लो कि आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर के ही सिटी लिखने हैं, ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो ये आप ये कंपलसरी नहीं है पर आप लिख सकते हो। ओके, और उसके बाद थर्ड फील्ड जो है हमारा जो है फील्ड प्रॉपर्टी। अगर फील्ड प्रॉपर्टीज का यूज़ क्या है, तो इट इज़ यूज टू कंट्रोल एंड वैलिडेट द डेटा दैट इज टू बी एंटर्ड फॉर ईच डेटा टाइप selected a list of field properties related to its display. It also has some default selection. We can change all the field property as per our requirement. So various field property will be discussed in detail in later chapter. यहाँ पे हम लोग ने सारे फील्ड तो नहीं देखे, कुछ फील्ड हम लोग ने देखे हैं। अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ज़रूर जानेंगे। तो अर्लियर इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस दैट वी विल बी यूजिंग टैग्स वैरकर इग्नोर केस डेटा टाइप फॉर एड्रेस फील्ड। अगर सुना हम लोग ने वैरकर इग्नोर केस यूज़ किया तो जब भी कोई पर्सन एड्रेस लिखेगा उसको वो स्मॉल लेटर भी यूज़ कर सकता है, कैपिटल लेटर भी यूज़ कर सकता है। ओके, आफ्टर दैट क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो इन फ्रंट ऑफ एड्रेस फील्ड इन फील्ड टाइप कॉलम डेटा टाइप एज शोन इन फिगर 9.16 विल बी डिस्प्ले। Choose text where ignore case data type. You can also rename the address field to address line 1. इवन अगर हम लोग को स्टूडेंट एड्रेस जो फील्ड है हमारे फील्ड को नेम भी हम लोग को चेंज करना है तो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमें फील्ड नेम लगा, कॉन्टैक्ट नेम नहीं चाहिए मुझे, कॉन्टैक्ट चाहिए सिर्फ, अब इसको कॉन्टैक्ट लिख सकते हो। यहाँ पे एड्रेस के लिए एड्रेस डिटेल चाहिए था, अब उसको चेंज कर सकते हो, फिर आपको सेव करना ज़रूरी है। ओके, सो द प्रोडक्ट एम्प्लॉय कस्टमर टेबल कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाई एज पर आर रिक्वायरमेंट इन द सिमिलर मैनर। जैसे हम लोग ने अभी ये प्रोडक्ट टेबल बनाया उसी तरीके से हम लोग एम्प्लॉय कस्टमर टेबल भी बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट डिलीटिंग अ ऑब्जेक्ट, डिलीटिंग एन ऑब्जेक्ट इट मीन्स व्हाट, to delete any object created in a base, right click on an object icon and click on delete option. Delete all table including the supplier table created through the wizard. We will recreate the required table as per our specification given 9.6, 9.7 using design view. अच्छा, ये कंप्लीट हो गया था हमारा, ये आगे थे। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, right now deleting object, स्टूडेंट अभी हम लोग को ये इसमें सिर्फ इतना ही देखना है कि जैसे हम लोग ने एक टेबल बनाया था सप्लायर, उसी तरीके से हम लोग बाकी टेबल भी बना सकते हैं, राइट। जैसे ये कंप्लीट होता है, हाँ इसमें एक ऑप्शन हमारा जो रह गया था वही हमारा प्राइमरी की। तो प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, प्राइमरी की के बारे में जानते हैं। प्राइमरी की क्या है एग्जैक्टली, टू डेजिग्नेट अ फील्ड एज अ प्राइमरी की, राइट क्लिक ऑन द सप्लायर कोड field to open submenu as shown in figure 9.19. Select the primary key option and symbol which looks like a key will be displayed in first column against the chosen field. अब ये करने से क्या होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखना, सपोज ये आईडी जो है इसमें मैं जब भी एंट्री करूँगा किसकी, तो प्रोडक्ट की, तो उस वक्त अगर मैंने एक नंबर का प्रोडक्ट ऐड किया है तो दोबारा मैं 1 नंबर नहीं लिख सकता। प्राइमरी की होती है हमारी यूनिक वैल्यू जो बार बार रिपीट नहीं हो सकती। उसके अलावा प्राइमरी की का रूल ये बताता है स्टूडेंट, अगर आपने कोई फील्ड एम्प्टी रखी यानी नंबर ही नहीं लिखा तो वो रिकॉर्ड वो डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा।
ओके स्टूडेंट। उसके बाद सेव टेबल, टेबल सेव कैसे करना है, तो हैविंग क्रिएटेड अ टेबल स्ट्रक्चर इट्स नॉट टाइम टू सेव द टेबल, क्लिक ऑन सेव बटन विजिबल इन फिगर 9.19, द सेव डायलॉग बॉक्स एज शोन इन फिगर 9.20 विल बी डिस्प्ले, टाइप द नेम ऑफ द टेबल एंड क्लिक ओके। ये हम लोग ने ऑलरेडी कर दिया था स्टूडेंट। Similarly, create the table product, employee and customer. The table created by us till now are known as master table. ये जो चार टेबल है स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर टेबल। The table store data that has information of transaction like customer purchasing a mobile phone from modern electronic store or detailed purchase made by mobile electronic store from its supplier Sony India. So it is suitable to design separate table to store transaction and relate them with a master table. So we will discuss transaction table in a later chapter. So next chapter में स्टूडेंट हम लोग टेबल में ट्रांजेक्शन कैसे होता है, टेबल को मैन्युअली कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, एंड दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 10 वर्किंग विथ टेबल. So now till here, if you have any doubt, you can ask me on my WhatsApp number. Thank you students, have a good day.